تو آپ آخر میں شمس بھائی میں ٹائم زیادہ لوں گا بھی نہیں، صرف دو تین باتیں یہ عرض کرنی دیکھیے، ہیں۔ یہ اپنا جٹ صاحب، شہزاد جٹ صاحب جٹوری چلے گئے نا، چلے گئے نا بھائی ادھر۔ عبید اللہ بھائی، یہ دیکھیے آقا کا غلام کی آئی ڈی بنا کے جی کوئی جی مرضی یہ مرضی ہے، پتہ مجھے سے میں نے دیکھ لیا کمنٹ اس کا۔ میں صرف اور صرف نا دو تین باتیں کروں گا۔ گفتگو درمیان میں ہوئی تھی جہاد کے حوالے سے۔ عموماً قادیانی یہ بات کہا کرتے ہیں، مرزا صاحب نے شرائط کے ناپید ہونے کی وجہ سے کہا کہ جہاد فی الوقت نہیں ہو سکتا، جہاد منسوخ نہیں ہے، ایک منٹ جہاد شہزاد صاحب منسوخ۔ جی ایک منٹ شہزاد شہزاد صاحب صاحب کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ دیکھیے ان قادیانیوں کو جو بھی بندہ ہے قادیانی ہے، یا اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارا مسلمان ساتھی ہے، اس کو بالکل، میں اس بات پہ تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمان ساتھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کوئی قادیانی ہوگا، کوئی ملحد ہوگا، جو بھی ہے جس نے یہ میسج کیا ہے، دیکھیے اس کے ساتھ آقا کا غلام لکھا ہوا ہے، اور جہاں پہ زیار رسول بھائی کی آئی ڈی ہے، یہاں پہ آقا کا غلام کے نیچے آقا کے اندر انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہے، اور لکھنے والے کو شرم نہیں آئی، لکھنے والے کو شرم نہیں آئی کہ نیچے وہ میسج کیا لکھ رہا ہے۔ یعنی قادیانی حضرات کو اتنی شرم کر لینی چاہیے کہ دیکھ لیں اوپر نام کیا آ رہا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ چاہے یہ کوئی جاہلوں ہے یا جو بھی کاہلوں ہے، جو بھی ہے، بہرحال اس کو ضرور شرم آنی چاہیے۔ اور آگے بھی اس کے گندے میسج آ رہے ہیں، چلیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا آئینہ، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس قسم کے غلاظت والے لوگ ہیں، کہ نام بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ رہا ہو اور نیچے یہ گندے گندے میسج کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے تمام قادیانیوں سے، قادیانی نوازوں سے، ان فتنہ پرور لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پروگرام آگے بڑھائیں۔ آمین۔ تو جی اپنا جی شمس بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ عموماً قادیانی یہ دلیل دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جہاد کو منسوخ نہیں قرار دیا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ جہاد کی منسوخی کا پیش کروں گا جس میں لفظ منسوخ آیا ہے، حرام نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عموماً منسوخ کی بات نہیں کرتے، کہتے شرائط نہ ہونے کی وجہ سے عارضی طور پہ مرزا صاحب نے کہا کہ جہاد فی الوقت نہیں ہو سکتا کیونکہ شرائط پوری نہیں ہے۔ ایک اس کا حوالہ پیش کروں گا، اور ایک گورنمنٹ برطانیہ کی، جس گورنمنٹ کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں مرزا صاحب، کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے اللہ کی طرف سے وحی کی بنیاد پر میں حکم دیتا ہوں، اس گورنمنٹ کا کردار مرزا قادیانی کی کتاب سے ہی دو تین سطروں میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو کچھ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، جو بکواس کی، جو بےہودہ زبان استعمال کی، اس کا مقصد کیا؟ عموماً قادیانی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے تو مرزا صاحب نے عیسائیوں کی بولتی بند کر دی تھی، عیسائیوں کو بہت کچھ کہا۔ وہ بتاؤں گا کہ عیسائیوں کو کس لیے اور کیوں کہا، اور اس کا مقصد کیا تھا، مرزا صاحب کی تحریر سے مختصراً عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ مجموعہ اشتہارات میرے ہاتھ میں ہے، 2 جلدوں والا ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 417 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے۔ یہاں پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک حکمت جہاد ہے جس کا ابتدائی اسلام میں حکم دیا گیا، اور پھر اس زمانہ میں اسے ممنوع قرار دیا گیا، اور اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں ان مسلمانوں کو جن پر حملے کیے جا رہے تھے کفار کے حملوں سے دفاع کے لیے اور دین اسلام اور صحابہ کی جانوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی اجازت دے دی تھی، لیکن سلطنت برطانیہ کے دور میں وہ زمانہ بدل گیا۔ یعنی زمانہ نہیں، حقیقت میں حکم کہنا چاہ رہے تھے، وہ زمانہ بدل گیا اور مسلمانوں کو امن نصیب ہوا، اور اسی طرح تلواروں اور نیزوں کی حاجت نہ رہی۔ پس اس وقت مخالفوں نے مجاہدین کو گناہگار ٹھہرایا اور انہیں ظالموں اور خون بہانے والوں کے مسلک پر چلنے والا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے غازیوں کے راز کو مخفی رکھا، اس لیے انہوں نے دین کی تمام لڑائیوں کو نکتہ چینی کی نظر سے دیکھا اور ہر مجاہد کو جبر، سرکشی اور گمراہی کی طرف منسوب کیا۔
बस अल्लाह ताला की मसलहतों ने इस बात का तकाजा किया कि वो लड़ाई और जहाद को मनसूख कर दे। ये सबज कलर की तहरीर हाईलाइट की हुई है, ये देखें। बस अल्लाह ताला की मसलहतों ने इस बात का तकाजा किया कि वो लड़ाई और जहाद को मनसूख कर दे। जहाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान करीम में फर्ज करार दिया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहन लकुम। इसी तरह फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितना, यानी कताल को जहाद को फर्ज करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला की तरफ से जो वही नाज़िल हुई। लेकिन मिर्जा साहब के बकौल उनके ज़माने में अल्लाह ताला ने जहाद को मनसूख करार दे दिया। अब सवाल यह है कि मिर्जा साहब शरई नबी थे जो एक शरई हुक्म को मनसूख करार दे रहे हैं, और किस बेस पर करार दे रहे हैं? फिर आगे लिखा, और इस तरह अपने बंदों पर रहम करे, और अल्लाह ताला की ये सुन्नत पहले लोगों में भी जारी रही है। चनाचे इससे कबल बनु इसराइल पर भी उनके जहाद की वजह से तान किया गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जमाना के आखिर में, ये भी काबिल गौर बात, हजरत मूसा के जमाना के आखिर में हजरत मसीह को मबूस किया, और इस तरह उसने ये दिखा दिया कि नुक्ता चीनी करने वाले ही खताकार थे। अब मेरे रब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के आखिर में मुझे मबूस किया। जनाब जो कहते हैं ना अकीदा खत्म नबूवत कहाँ से लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आखिरी नबी क्यों मानते हो? जो कहता है मेरे जमाना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के आखिर में, जनाब ये आखिर में है, ये देखें कितनी वाज़ेह बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के आखिर में मुझे मबूस किया। जब आखिर में मिर्जा साहब मबूस हुए तो इसका मतलब है अब मिर्जा साहब के बाद कोई नबी नहीं, वो आखिरी नबी हैं। जनाब अब बताइए जराए नबूवत का अकीदा और इनाम याफ्ता लोगों का अकीदा तुम्हारा कहाँ पे चला गया? वो कहाँ गई आयत सूरह निसा की जो आप लोग पेश करते हो कि जनाब इनाम आगे बढ़ेगा जी, अताअत की वजह से नबूवत मिलती है। मिर्जा साहब तो कह रहे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना के आखिर में मसीह को मबूस किया, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के आखिर में मुझे मबूस किया। फिर आगे मिर्जा साहब ने लिखा वाज़ेह तौर पे, और इस ज़माना की मकदार को हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माना की मकदार के मशाबे बना दिया, और इस समय सोच विचार करने वालों के लिए एक बड़ा निशान है। और मेरी बाइस्त और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाइस्त का एक ही मकसद है, वो मकसद इस्लाह अखलाक और जहाद को ममनू करार देना। जनाब मिर्जा जी की बाइस्त का मकसद इस्लाह अखलाक और जहाद को ममनू करार देना है। अखलाक की सलाह उन्होंने जो की है वो सबको पता है, जो उनका अपना अखलाक था कि सूफी अब्दुल हक गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा कि उसके बीवी से बच्चा तो क्या पैदा होना था, अल्लाह ताला ने उसके रहम पे मोहर लगा दी, बच्चा तो क्या चूहा भी ना निकला। ये अखलाक की सलाह हो रही है मिर्जा साहब की तरफ से जनाब। और जहाद को ममनू करार दिया मिर्जा साहब ने, मनसूख करार दिया। ये मजमुआ इश्तारात है, 2 जिल्दों वाला एडिशन है, सफ़ा नंबर 417 और 18 है जो मैंने आपके सामने पेश किया। जो कादियानी ये कहते हैं ना कि मिर्जा साहब ने जहाद को मनसूख नहीं करार दिया, ना वो शराइत के नापैद होने की वजह से कहा था कि वक्ती तौर पर आराम है, इस तरह के अटकल पच्चू जो लगाते हैं, ये उनके मुंह पर मिर्जा साहब की तहरीर तमांचा है, मिर्जा साहब की तहरीर उनके मुंह पर। अब बताएं इस सवाल का जवाब दें कि मिर्जा साहब जो हैं वो शरई नबी थे, गैर शरई थे? उनको किसने हक दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जहाद को फर्ज करार दिया है, कताल को फर्ज करार दिया, उसको एक इस्लामी हुक्म को, शरई हुक्म को मनसूख करार दे? ये जवाब है कादियानियों के लिए मेरे से। और दूसरी बात जो मैं ये अर्ज करना चाहता था गवर्नमेंट बरतानिया के हवाले से, ये रूहानी खजान जिल्द 10 है, सफ़ा नंबर जो है इस वक्त 73 है। ये जो हवाला देते ना हमारे भाई यूरोपियन रंडियों वाला, ये उसी मजमून में तहरीर मौजूद है जो बड़ी अहमियत की अमल है। उसमें लिखा है कि और भी कई ऐसी
वारदातें हुई हैं जिनसे अहले हिंद की तरफ से बहुत नाराजगी फैलती जाती है, जिनमें से म्यांमार का मुकदमा जनाब बिल जबर जो गोरा सिपाहियों की तरफ से एक बदसूरत बुढ़ी और अंधी औरत से किया गया था काबिल गौर है। जनाब, जिस गवर्नमेंट बरतानिया की अतात का आर्डर जारी कर रहे हैं मिर्जा साहब, ये मिर्जा साहब की किताब से हवाला दे रहा हूँ, ये आर्या धर्म रूहानी खजान जिल्द 10 है, सफा नंबर 73 है। ये आपके सामने हाईलाइट की हुई तहरीर है। मिर्जा साहब की तहरीर से सबूत पेश कर रहा हूँ कि उस गवर्नमेंट के फौजियों की बदमाशी से बूढ़ी, अंधी और ज़ईफ औरतें भी महफूज नहीं थीं। वाज़े तौर पे लिखा है कि जिनमें से म्यांमार का मुकदमा जनाब बिल जबर जो गोरा सिपाहियों की तरफ से एक बदसूरत बुढ़ी और अंधी औरत से किया गया था काबिल गौर है। ऐसा ही एक वाकया इसके सूबा में हुआ, वाकया मद्रास के सूबा में हुआ, जहां एक रेलवे फाटक के चौकीदार ने हिंदुस्तानी औरतों की इफ्फत बचाने में अपनी जान दे दी थी। यानी बरतानवी फौजियों ने वहां पर भी हिंदुस्तानी औरतों के साथ ज्यादती की कोशिश की और एक रेलवे फाटक के चौकीदार ने उनकी इज्जत, उनकी असमत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और कादियानियों, तुम्हारे मिर्जा गुलाम कादियानी से तो वो चौकीदार रेलवे फाटक का अच्छा था जिसने औरतों की इज्जत और इफ्फत बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और तुम्हारा मिर्जा इस गवर्नमेंट की जिनका ये किरदार, जिनका ये कैरेक्टर है कि उनके शर से बूढ़ी, ज़ईफ, बदसूरत, अंधी औरतें भी महफूज नहीं थी, उनके जनाब बिल जबर से उनकी अतात का हुक्म दे रहा है और कह रहा है ये हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया है। अब भाई ये जो कादियानी कहते हैं ना जनाब, मिर्जा साहब ने बड़ी खिदमत की, ईसाइयों के मुंह बंद कर दिए थे जनाब। अब इस हवाला, एक हवाला यहाँ से पेश करके इस सिलसिले में तो अपनी बात को क्लोज करूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि मिर्जा साहब ने ईसाइयों के मुंह कैसे बंद किए थे। जनाब, ये किताब रूहानी खजान जिल्द 15 है और ज़मीमा तोहफा गुलरविया है, ये देख सकते हैं। ये आप ज़मीमा नंबर 3 मुंसलिक किताब तरियाकुल कुलूब हजूर गवर्नमेंट आलिया में एक आरजाना दरखास्त, ये रूहानी खजान जिल्द 15 तरियाकुल कुतूब के अंदर और सफ़ा नंबर 490 पर और 91 पर मिर्जा साहब की तहरीर है। वो पढ़ के सुना देता हूँ, सबको पता चल जाएगा। मिर्जा साहब लिखते हैं, मैं इस बात का भी इकरारी हूँ, मैं मिर्जा साहब का इकरार पेश कर रहा हूँ कादियानियों तुम्हारे सामने, और मैं इस बात का भी इकरारी हूँ कि जब के बाद पादरियों और ईसाई मिशनरियों की तहरीर नहायत सख्त हो गई और हद-ए-तदाल से बढ़ गई और बिलखसूस पर्चा नूर अफशां में जो एक ईसाई अखबार लुधियाना से निकलता है, नहायत गंदी तहरीरें शाया हुई और इन मुअल्लिफीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नाऊज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये शख्स डाकू था, चोर था, जनाकार था और सदहा पर्चों में ये शाया किया कि ये शख्स अपनी लड़की पर बदनीयती से आशिक था और बाएं हमा झूठा था और लूट मार और खून करना उसका काम था। तो मुझे ऐसी किताबों और अखबारों के पढ़ने से ये अंदेशा दिल में पैदा हुआ कि मबादा मुसलमानों के दिलों पर जो एक जोश रखने वाली कौम है, इन कलमात का कोई सख्त इश्तिआल देने वाला असर पैदा हो। देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत, उनकी नामूस पर बात आएगी तो मुसलमान जज्बाती होंगे, इमोशनल होंगे, उनका तल्लक ही ऐसा है। तो मिर्जा साहब लिखते हैं कि जनाब इश्तिआल देने वाला असर पैदा हो, तब मैंने उन जोशों को ठंडा करने के लिए अपनी सही और पाक नियत से यही मुनासिब समझा कि इस आम जोश के दबाने के लिए हिकमत अमली यही है कि इन तहरीरात का किसी कदर सख्ती से जवाब दिया जाए तासरीउल गज़ब इंसानों के जोश फर्ब हो जाएं और मुल्क में कोई बेअमनी पैदा ना हो। जनाब, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बदज़बानी की या जो कुछ ईसाइयों के बारे में मिर्जा साहब ने लिखा है ना, सफाइयाँ पेश करने मैंने इसलिए लिखा है कि ईसाई पादरी जिन्होंने आका करीम की गुस्ताखियाँ की थी, वो जोश रखने वाले
जहादी और जज्बाती मुसलमानों के हाथों कत्ल ना हो जाए, उनको बचाने के लिए ये काम किया था। आगे मिर्जा साहब लिखते हैं, तब मैंने बमुकाबल ऐसी किताबों के जिनमें कमाल सख्ती से बदजबानी की गई थी, चंद ऐसी किताबें लिखी जिनमें किसी कदर बिलमुकाबल सख्ती थी, क्योंकि मेरे कॉन्शियंस ने सही तौर पर मुझे फतवा दिया कि इस्लाम में जो बहुत से वहशियाना जोश वाले आदमी मौजूद हैं, उनके गैज़ो गज़ब की आग बुझाने के लिए ये तरीक काफी होगा, क्योंकि इवज़ मुआवजा के बाद कोई गिला बाकी नहीं रहता। तो ये मेरी पेशबीनी की तदबीर सही निकली और इन किताबों का ये असर हुआ कि हजारा मुसलमान जो पादरी मादुद्दीन वगैरह की तेज और गंदी तहरीरों से इश्ताल में आ चुके थे, यक दफा उनके इश्ताल फर्ब हो गए। यानी ये तहरीर मेरी नहीं है, ये मिर्जा साहब का कादियानियों इकरार है कि उन्होंने ईसाई पादरियों जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की थी, उनको मुसलमानों के जहादी जज्बा रखने वाले मुसलमानों से बचाने के लिए ये तदबीर इख्तियार की कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और ईसाइयों के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल की, ताकि मुसलमानों का जो जोश जो जज्बा है ना वो माद बढ़ जाए और ईसाई पादरी गुस्ताखे रसूल जो है उनके हाथों कत्ल ना हो और बच जाए और बदअमनी पैदा ना हो। फिर आगे मिर्जा साहब ने लिखा है, अबैदुल्ला भाई बहुत टाइम हो गया, दोस्त जो है मुख्तसर कर दे, मैंने आपसे कहा था सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा देर नहीं चल। मैंने कहा कि शायद आप रूहानी गज़ल पूरी पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं। नहीं ये एंड है इसका। फिर आगे मिर्जा साहब ने लिखा, क्योंकि इंसान की ये आदत है कि जब सख्त अल्फाज के मुकाबले पर उसका इवज देख लेता है तो उसका वो जोश नहीं रहता। बाएं हमा मेरी तहरीर पादरियों के मुकाबले पर बहुत नरम थी, गोया कुछ भी निस्बत ना थी। हमारी मोहसन गवर्नमेंट खूब समझती है कि मुसलमान से ये हरगज नहीं हो सकता। अगर कोई पादरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो एक मुसलमान उसके इवज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दे, क्योंकि मुसलमानों के दिलों में दूध के साथ ही ये असर पहुंचाया गया है कि वो जैसा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, ऐसा ही वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। अब कादियानियों, मैं पूछता हूँ कि मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो गालियां बकी हैं, जो गालियां दी हैं ईसाई पादरियों के जवाब में, बताओ कि मिर्जा साहब अपने ही तहरीर के आईने में मुसलमान थे या नहीं थे? या तो फिर कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं काफिर थे, मान लो, यही तो हम कहते हैं कि वो मुर्ताद और ज़िंदीक था, गुस्ताख था। और मिर्जा साहब तो खुद कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि जनाब कि मुसलमान से ये हरगज नहीं हो सकता, काफिर कर सकता है, मुसलमान से ये हरगज नहीं हो सकता कि अगर कोई पादरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे तो एक मुसलमान उसके इवज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दे, क्योंकि मुसलमानों के दिलों में दूध के साथ ही ये असर पहुंचाया गया है। वो जैसा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, ऐसा ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। आखिरी बात जो मिर्जा साहब ने यहाँ पे लिखी है वो बात करके बात खत्म करता हूँ। लिखा, सो मुझसे पादरियों के मुकाबले पर जो कुछ वकू में आया, यही है कि हिकमत अमली से बाज वहशी मुसलमानों को खुश किया गया। और मैं दावे से कहता हूँ कि मैं तमाम मुसलमानों से अव्वल दर्जा का खैर खा गवर्नमेंट अंग्रेजी का हूँ, क्योंकि मुझे 3 बातों ने खैर खाई में अव्वल दर्जा का बना दिया है। अव्वल वालिद मरहूम के असर ने, 2 में से गवर्नमेंट आलिया के एहसानों ने, तीसरे खुदा ताला के इल्हाम ने। वो गवर्नमेंट का किरदार किया जो मैं पहले आरिया धर्म से ही मिर्जा साहब की तहरीर से पेश कर चुका हूँ कि बदसूरत, अंधी, नबीना, बूढ़ी औरत भी उनकी बद चलनी से, उनकी बदमाशी से महफूज नहीं रही, उनकी इज्जत को तार तार किया गया। ये था इस गवर्नमेंट का किरदार। और कादियानी जो तुम्हारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्या किसी नबी का यही कैरेक्टर और किरदार होता है? क्या नबी तो दूर की बात, क्या किसी शरीफ इंसान का यही कैरेक्टर और किरदार होता है? ये फैसला आपने करना है। मैंने बात आप तक पहुंचा दी है, तो अब ये फैसला आप खुद करें कि आप किस गुमराही के गड्ढे में गिरे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शमस भाई, बहुत ही तफसीली आपने हमारे दोस्तों को ये बात समझाई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
کہ جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ ایک پورا لیکچر دیں آ کے، چونکہ ہمارا لیکچر جو ہے پہلے ہی ٹائم بڑھ جاتا ہے ہمارا، تو پہلے عموماً پروگرام گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہوتا تھا، تو آپ کو ہمارے چینل پہ کھلی دعوت ہے، آپ اپنا جو بھی کرنا چاہیں، لیکچر دینا چاہیں مجھے پہلے بتا دیں، میں انشاءاللہ اس کا ایڈ وغیرہ لگا دوں گا، دوستوں کو بتا دوں گا۔ چونکہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسٹریم جب دیکھتے ہیں نا بہت لمبی ہو گئی ہے تو وہ پھر اس کو کم دیکھتے ہیں کہ یار، اور یہ اتنی اہم باتیں آپ نے کی ہیں یہ شروع میں بیان ہونی چاہیے نا، تاکہ کوئی لوگ تھوڑی سی اسٹریم سنتے ہیں پھر وہ آگے نہیں دیکھتے، تو ایسے اہم موضوع فرسٹ میں آنے چاہیے۔ تو امید ہے، میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، ضرور اور یہاں پر شمس میں بھائی، اپنے ساتھیوں کو یہ ایک بات، ایک میرا نمبر جو ہے نا وہ اوپر لگا دیں، کتابوں کے سلسلے میں ساتھی پوچھ رہے تھے، نمبر کا مطالبہ کر رہے تھے، میں نے کمنٹ دیکھے ہیں، میرا نمبر جو ہے وہ ذرا اسکرین پہ دکھا دیجیے۔ وہ آپ نا پھر اپنا نمبر ذرا بولیے، میں لکھتا ہوں ذرا۔ 03 زیرو 04 304 304 62 ایک سیکنڈ ہے اس کا، 0304 جی 62 62 65 65 209 209 9 اچھا جی، ایک میرا خیال ہے اس کا کہ زیرو جو ہے وہ مس ہو گیا پہلا۔ ٹھیک ہے، یہ میں ابھی میسج پہ جو لگا رہا ہوں یہ 10 ساتھی دیکھ لیں گے۔ ویسے بھی میں یہاں اپنے تمام دوستوں کو بتاتا چلوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم جو ہے اپنی جو اسٹریم ہے اس کے اندر ان کا پورا نمبر ہم چلا دیا کریں گے عبید اللہ بھائی کا، اور ویسے اگر جن لوگوں کو عبید اللہ بھائی سے رابطے کی ضرورت پیش آئے وہ ان باکس میں مجھ سے عبید اللہ بھائی کا فون نمبر لے سکتے ہیں۔ پہلے بھی ایک دو دوستوں نے نمبر لیا تھا۔ بحریہ ٹون عبید سے اللہ میں سب عبید اللہ بھائی آپ اپنی کتابیں دکھا کے ساتھ ہی دعا کروا دیجیے گا، بہت جناب، شکریہ۔ یہ میری کتاب ہے مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت، اور اسی طرح دوسری کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ یا قادیانی نکالتے۔ اس کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی کتاب جو ایک غلطی کا ازالہ ہے اس کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسری کتاب ہے قادیانی ذل بروز کی حقیقت، جس کے اندر اس کا ذل بروز کا جو دعویٰ ہے اس کی کلئی کھولی گئی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب جس بھائی کو چاہیے ہوں وہ میرے ساتھ پرسنل میں رابطہ کر سکتا ہے، شمس بھائی سے کر سکتا ہے، نمبر ہم نے کمنٹ میں دے دیا ہے۔ پھر ایک بار بتا دیتے ہیں 03046265 اس نمبر پہ آپ جب بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ میں وہ کتب آپ کو مہیا کروں گا، پہنچاؤں گا۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب بیماروں کو شفائے کاملہ اجلا نصیب فرمائے، خواہ وہ جسمانی بیمار ہوں یا روحانی بیمار ہوں۔ تو تمام بھائی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم تیرے گناہ گار سیاکار بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر ہوئے یا انجانے میں اپنے خاص رحمت سے معاف فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ جب تک زندہ رکھیں ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین جب بھی موت آئے شہادت کی قبولیت والی موت نصیب فرما،
या इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। अल्लाह जो बेटियों के तलबगार हैं उनको बेटियां अता फरमा। अल्लाह जिनको बेटियां दी हुई हैं अल्लाह उन बेटियों के उन बच्चियों के मुकद्दर और नसीब अच्छे फरमा। या रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ पर भी तेरे मुसलमान मजलूम है अल्लाह उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन कश्मीर के चिनियारी के एरिया जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान मजलूम है अल्लाह तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरे मुल्क मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। अल्लाह इस मुल्क को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन हज और उम्रा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो उम्रा कर चुके अल्लाह उनके उम्रे कबूल फरमा। अल्लाह जो हज कर चुके उनके हज कबूल फरमा। अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता तेरे खालिक होने का वास्ता या इलाहुल आलमीन हम सबको बैतुल्लाह का तवाफ खाना काबा का तवाफ करना नसीब फरमा। या अल्लाह से हम सबको जो है रोज़तुल रियाजुल जन्नह में हाज़िरी नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबको जो है सेहत और आफियत और ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। जी शमस भाई। जी अबैदुल्ला भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बात का भी शुक्रिया कि आप बिल्कुल आखिर तक हमारे साथ हमारी स्ट्रीम में रहते हैं। हमारे नाज़रीन सुनने वाले भी सुन रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को, मैं फिर एक दफ़ा जाते जाते ये कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हदायत नसीब फरमाए, चाहे वो हमारे अंदर से हैं चाहे बाहर से हैं, चाहे वो कादियानी हैं या कादियानी नवाज हैं। जो भी हमारी स्ट्रीम में आकर गलत बात करता है, गंदी बात करता है या किसी भी तरह से हमारी स्ट्रीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला हमें इन तमाम फितनों से, इन शर अंगेज लोगों से बचा कर रखे। तमाम दोस्त अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए ताकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तक जो हमारी बातें हैं वो सही तरीके से पहुंच सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।